میں نے یہ کھوجنا شروع کیا کہ جو اسلام چھوڑ دیں اس کا قتل کیوں کر دیتے ہیں، تو جتنے میں نے ہر فرقے کے لگ بھگ ہر فرقے کی تقریر سنی تو سب نے ایک ہی بات کہی کہ وہ غدار ہے، اس نے اسلام چھوڑ دیا اور غدار کی سزا موت ہوتی ہے۔ میں نے کہا چلو مان لیا غدار ہے، غدار کی سزا موت ہے، جی اچھی یہی بات ہے، اسے پھانسی پر لٹکا ہے۔ دو۔ مگر ایک بات بتاؤ، جو ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بودھسٹ، آرسی، پارسی کوئی بھی اپنا مذہب چھوڑ کر آتا ہے وہ بھی تو اپنے ایشور سے غداری کر رہا ہے، ہاں اور ان سارے غداروں کو پناہ تم دے رہے ہو 1400 تم سال دے سے۔ تو یہ اگر بات جب غداری کی سزا موت ہے تو غداروں کے گروہوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ہے، کرداروں کے سرگنوں کی سزا کیا ہوگی؟ جی 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 امروز بھائی بالکل صحیح بات کہی آپ نے، ٹوٹلی ایگری وتھ یو بھائی جب تم کہتے ہو اینڈ غداری کی، اس نے محمد سے غداری کی، اللہ سے غداری کی، تو ایک ہندو اگر مسلمان بن جاتا ہے تو اس نے بھی تو رام سے غداری کی ہے۔ بالکل ایک سکھ مسلم ہو جاتا ہے تو اس نے بھی تو اپنے گرو صاحب سے غداری کی ہے، اور ان سارے جی غداروں کو تم پناہ دے رہے ہو، یا لعنت ہے تمہارے اوپر۔ تو پھر اس کی جی علی سزا بھائی، کیا ہے؟ جی امروز بھائی، جی 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 امروز بھائی، ارے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا تھا۔ ارے سنو سنو، ہاں ہاں نہیں مت سنو، بیچ میں بدتمیزی ملحد نہ کو کریے، بیچ میں بدتمیزی نہ قتل کریں، کرنے ناگیندر کی جی ان کو سزا بیک اس سٹیج نہیں کی نہیں، لیے یہ ہے مومن، کہ ارے جو یہ حد مومن سے ہے، بتائیے۔ نکلتا ارے ہے۔ میں جو اگر ہاں بھائی مومن ہے وہ صاحب یہ بیچ میں آ کے مومن روسٹ ہے، کرے گا۔ نہیں مومن ہے تو کسی کی طاقت نہیں ہے جو اسے روک لے۔ ہاں بھائی ملحد بھونکنا کا اسٹارٹ کر بھائی۔ سزا قتل کرنا ہے، اس لیے کیونکہ وہ حد سے نکلتا ہے، اسلام کے حد ہوں، سے نکلنا، جو کفر ارے کیا تو کفر بھائی کرنے والے کی مولویوں سے سزا، پوچھنا حد اسے سے غدار نکلنے کہا والے کی جاتا سزا، ہے؟ دنیا کا کوئی بھی قانون یہی قانون کہتا ہے کہ اسے قتل کرو۔ جی جی اچھا اسلام میں مومن جناب پاکستان آپ، کا ایک، سن ہاں پاکستان کا ایک مولوی بھاشن دے رہا تھا، ایک شخص بہت ہاں زیادہ شراب پیا کرتا تھا، ہم نے کہا اچھا کہ بھائی تم اسلام میں آ جاؤ، وہ کہتا ہے ہاں کہ جی اسلام میں تو شراب حرام ہے۔ بولے نہیں ہم ہاں تمہیں اجازت دے دیں گے، یہ اس کے زبانی اچھا بول ہے، چاہو گے تو میں ڈھونڈ کے اچھا۔ بھیج دوں گا کہ ارے جی تو تم ابے سن بھائی، پوری بات سن مومن بھائی، پوری بولنا بات تو سن۔ پورا تو بول 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 تو اب بول اس نے جی تمہیں اجازت نہیں دے دیں نہیں گے، اب اس نے پڑھ لیا کلمہ، جیسے کلمہ پڑھا اور شراب کی طرف ہاتھ ہاں بڑھایا تو بولے کہ شراب تو حرام ہے۔ بولے جی آپ نے تو ہاں وعدہ کیا تھا۔ بولے میرے وعدہ کرنے سے اسلام تھوڑے نہ بدل جائے گا۔ تو بولا جی میں تو ہندو ہونا چاہتا ہوں۔ بولے اب اگر ہندو ہوگے تو تمہارا قتل ہوگا۔ تو وہ بہت سینہ چوڑا کر کے بول رہا ہے دیکھیے ہم اسے اسلام میں بھی لے آئے اور اس کی شراب بھی چھڑوا دی، کیا اس کو غداری نہیں کہیں گے؟ بولو بھائی۔ ہاں ہاں بھائی کیا ہوا؟ ابھی تو بہت چیخیں نکل رہی تھی اس کی۔ کیا جی دیکھو اے عمرو، اور ہیلو، آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے ارے گندی بھائی ذرا چیز ہے شراب اسلام میں، اور جنت میں ہاں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے شراب کو۔ ارے شراب بھائی حدیث میں ارے جاؤ، حدیث سن لے بھائی، حدیث میں جاؤ، حدیث نمبر مجھے یاد نہیں ہے، مجھ سے سن کہ لے، خود مجھ سے خدیجہ کی شادی، خدیجہ کے باپ کو شراب پلا کے محمد نے شادی کی تھی، آپ کے معلوم ہے آپ کو؟ محمد کی ایک نے لنگوٹی اتار کے اے، پھینک دی تھی، اس لیے اس نے سنو، شراب کو بین کیا، حرام کیا۔ اس نے دیکھا میری جو اسلام میں وہ دادا شراب گیری پینے والے نہیں کی چل سکتی۔ نماز تک نہیں قبول ہوتی ہے 40 دن تک، پڑا ہے؟ شراب ارے شراب پینے والے کو کہا گیا ہے جو شراب پیتا ہے وہ ایسا ہے جو اپنی ماں پہ سوار ہوا، اپنے بہن پہ سوار ہوا، اپنے خالہ پہ سوار قرآن سے ہوا، اپنے قرآن سے بوا پہ ثابت کرے سوار گا، ہوا۔ قرآن سے ثابت کرے گا، ہاں قرآن سے تو شراب حرام ہی ہاں، نہیں ہے، قرآن ابے سے شراب حرام قرآن نہیں سے ہے۔ حرام ہے۔ ارے بھائی سن، ارے میں آج ہی کلمہ پڑھتا ارے ہوں، اگر قرآن، ارے بھائی سن لے جی، بیٹا سن لے، بھائی اگر تو قرآن بیٹا، سے میرا شراب کو بیٹا، حرام قرار دلا سکے قرآن نے تو میں شراب کو آج ہی کلمہ حرام کیا پڑھنے کو ہے۔ تیار ہوں۔ قرآن میں صرف یہ ابھی آیا کہ تیرے سامنے نشے پڑھ کی کے حالت بتاؤں۔ میں نماز نہ پڑھو، ہاں نشے کی حالت میں ارے نماز نہ پڑھو۔ نشے تو جیسے نشے نشے کی تو حالت میں ڈرائیونگ کرنا اپرادھ ہے، ہاں ہاں اگر ڈرائیونگ نہیں کر رہے ہیں تو پی سکتے ہیں، نشے کی حالت میں ہاں ڈرائیونگ نہیں کر سکتے جس طرح سے، ہاں اسی طرح نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ اس سے حرام کہاں ہو گئی شراب؟ بتا، ہاں قرآن سے ثابت کر بھائی، شراب حرام ہے۔ ہاں، ارے میں میں بھائی میں میں قرآن میں پیتا قرآن ہوں، میں اور قرآن میں میں بھی اور لکھا سن، ہے، اور میں
बहुत सुन, अच्छी वाली सुन, शराब सुन, पीता हूँ। अरे ये पहले का जवाब तूने एक सीढ़ी से डायरेक्ट छलांग मारता है, एक पहले आसमान में पहुंचे, अरे सातवां मैं आसमान छलांग में नहीं मार रहा पहुंचे। हूँ, छलांग मार टांगे रहा है। तुम्हारा, अरे छलांग, इतनी टांगे तुम्हारी चिरी हुई है तुम लोगों की, मदरसे में भी अरे पहले और सुन छोटी तो, छोटी बच्चियों की भी तुमने कर रखी है ये कांड। थोड़ा बोल तवक्कुल कर, मैं पोल बताता पट्टी हूँ मत खुलवा। शराब के बारे में कैसी कैसी हुर्मतें हैं। हाँ, शराब के बारे में कहा गया इतनी है, टांगे तुम्हारी जिसने चिरी हुई है, सुन, छलांग तुम ही मारते नबी हो सल्लल्लाहु भाई। अलैहि वसल्लम ने कहा फितनों में कभी रुकाव होगा और कभी उठाया जाएगा, इस्तिताअत हो तो रुकाव में ही तो मर जाओ, रुकाव में ही मर अरे जाओ, तो ऐसा यार, कर लो। तेरा और पैगंबर तो खुद एक फितना था दुनिया के लिए, शराब उस नहीं फितने होगा, को मिटाने के, अकले उस से फितने को करेगा, मिटाने के लिए तो चैनल चल फितनों रहा है से ये। लेकर चला जाएगा। अब रेलगाड़ी और मत छोड़ कहा भाई। शराब उन्होंने खबाइस अरे है, और अरे कहा जिसने रेलगाड़ी शराब मत पिया, छेड़। वो अपनी माँ अच्छा पर, ये बता, अपनी तेरे नबी ने बहन कहा पर, अल्लाह अपनी बड़ा खाला है पर, या अपनी बुआ नहीं? पर सवार हुआ। चुप 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 और चुप। कुरान में लिखा अल्लाह हुआ बड़ा है या मोहम्मद बड़ा है? मोहम्मद ने अबे, शराब को हराम कर दिया और क्या अल्लाह ने हराम अल्लाह नहीं ने किया, कहा बड़ा था कि कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु इमरोज अलैहि भाई, वसल्लम अल्लाह के इमरोज बड़े भाई हैं? देखें कैसी चीखें निकल रही हैं इस इंसान की, नहीं उससे नहीं, पता चलता इससे है कितना इसे insecure इसे है। म्यूट करो, इसे म्यूट हिम्मत करो। रखता है, अपने बाप का पिया है ना, इससे- लंबा वाला बात कर ले, आज हिम्मत है तेरे से बात करने का, मेरे किसी भी टॉपिक पे बात कर ले, नहीं तो ये हद से बढ़ेगा, तो तुम्हारा उल्टा सीधा पैर यार काट के देखो, सूली पे सुनो लटका सुनो, देंगे। बात उससे की जाती है जो अपने इंसानों की कुरान तरह के, बात करे। तुम कुत्तों की तरह भौंक रहे हो, क्या बात करूं मैं तुमसे यार? तुम सुअर की तरह, कुत्ते की सुअर तरह की भौंक तरह। रहे हो। अच्छा ये तो बता, मोहम्मद बड़ा या अल्लाह? अल्लाह ने जब शराब को हराम नहीं किया, मोहम्मद हराम कर रहा है, तो बड़ा कौन है? किसकी बात को पहले मानूं? जी मैंने भी बैक स्टेज किया है, तो एक एक करके बात करें, थोड़ा आराम से बात करें, यहाँ पे ज्यादा उत्तेजित ना हो। ना 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 भाई, उत्तेजित तो वही हो रहा है मेरे भाई, उत्तेजित तो वही हो रहा। तो इससे सवाल है कि अल्लाह बड़ा है, हदीसें बड़ी है या कुरान बड़ा है? मोहम्मद हराम का, हदीसें वो है जो मोहम्मद की वाणी है, कुरान वो है जो अल्लाह की वाणी है। तो अल्लाह बड़ा है या मोहम्मद बड़ा है? अबे सुन, पहले अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, तमाम अंबियाओं के सरदार अरे हैं। तो फिर बता, अल्लाह के बाद ही है ना? अरे जाहिल इंसान, मुझे लगता है तू मोहम्मद की लोंडी की औलाद है, मुझे लगता है तू मोहम्मद की किसी लोंडी की औलाद है, और तुम तो किसी मुझे कौम से लगता भी है नहीं, तू तुम वही वही है। हो, तुम्हारा तू तो मैं उल्टा सीधा तुझसे पैर सीधे काट के सीधा सा तुझे तो सवाल लटका कर देना रहा चाहिए। हूँ, अल्लाह बड़ा है या मोहम्मद? जब अल्लाह ने कुरान में शराब को हराम करार नहीं दिया, तो तू कौन होता है तेरा फिर मोहम्मद? अबे कुरान में साफ लिखा है शराब के करीब भी दिखा दिखा दिखा, जुआ के आयत करीब मत जाओ, आयत बता, शराब आयत बता, आयत शराब बता, मत स्क्रीन पियो। पे आ जाएगी। अरे नशे की हालत में नमाज ना पढ़ो, ये लिखा है, जैसे नशे की हालत में ड्राइविंग करने पर चालान कट जाता है। कुरान को पढ़ के बताता हूँ। ला दिखा। देखें इमरोज भाई, ये इंसान जो है ना, मैं आपकी बात सबकी ये काट जिस तरीके से ये बोल रहा है जी, लॉजिकल भाई आप बोले। ये जो आया था ना अंतुमुल सुकारा, सुकारा क्या है जो है, ये नशे के बारे में नहीं है, ये इसके बारे में है कि जब तक तुम नमाज को समझने न लगो, समझ ना सको। नशे की हालत क्या है? इनसे पूछें कि क्या आपको अस्सलात का पता है, अस्सलात है क्या, और अस्सलात को समझ चुके हो? जब तक तुम अस्सलात को समझोगे नहीं, समझ नहीं सकते, तो तुम अस्सलात के करीब भी नहीं जा सकते। तो ये ऐसे ही जा रहे हैं बच्चे। ये वाला है यार। हाँ, ये जो भी अच्छा महलिक जी हैं क्या यहाँ पर उपस्थित? सुकारा का मतलब है ना नशा नहीं है वो। अरे यार क्या बात, जब भी मैं आता हूँ महलिक जी बिजी रहती हैं। चलो अभी मैं भी इजाजत चाहता हूँ। जी 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 इमरोज भाई, उन्होंने क्या एक्चुअली वैसे ज्वाइन करा हुआ है, बट वो डिस्कशन में अभी इतना पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, वो एक्चुअली कुछ काम वगैरह में जैसे बिजी वगैरह होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा बच्चा मेरा आदाब प्रणाम बोलना। अरे भाई बीच में मत भौंक यार। जी इमरोज भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे सुनना, मेरा बच्चा कह रहा, मैं मोहम्मद की लोंडी का बच्चा हूँ, मोहम्मद तेरे मोहम्मद की लोंडी का बच्चा हूँ, नाजायज मोहम्मद की। मैं तो अपने आप को इतनी बड़ी गाली दे रहा हूँ, इतनी बड़ी गाली दे रहा हूँ। जो ज़िना करता है उसकी हालत ऐसी होती है कि वो किसी से वजह करने के काबिल नहीं होता है, और वो एक लौंडी की तरह उसका जिंदगी हो जाता है, क्योंकि वो ज़िना करने वाला चल हटा यार, वो हटा पैक बना लूं।
न अपने माँ का होता है, न अपने बहन भाई अबे का। सुन तो सही, मैं शराब बिस्मिल्लाह पढ़कर पीता हूँ तो इस पर क्या कहेगा? ये कहेगा नहीं इमरोज भाई, ये भौंकेगा जी। बेटा भोंकते सुअर लोग तुम जैसे चुचवाते हो, तुम जिना करते हो, तुम गुलाम के बात करो। नबी साहब ने कहा जब रिबा बढ़ जाएगा तो उसमें भाई मेरे चैनल ईमान वाला काफिर पर तू आ, और मैं तुझ सुन, अरे भाई सुन तो सही, तेरे जैसों की बैक स्टेज में जो ठुकाई करता हूँ ना मैं तेरे जैसों की बैक स्टेज में ऐसी, अरे बैक स्टेज में ठुकाई करता हूँ मैं, तेरी तरह जाहिल बदतमीज नहीं हूँ जो ऑन स्ट्रीम पब्लिक के सामने बोले। आने वाला है सामने, कुत्ते की तरह भागेगा, आगे फिर आएगा, पीछे फिर आगे, अरे अनपढ़ नबी की नाजायज औलाद, अनपढ़ नबी की नाजायज औलाद। क्या तो मंतक क्या होता है तेरे को बताता हूँ, इल्म क्या होता है। जाहिल कौन की औलाद, तेरे नबी को इल्म ना था भाई, जाहिल कौम की औलाद, तेरे नबी को इल्म नहीं था, जाहिल तो जाहिल ही रहोगे। जिब्राइल दबा के कुछ कर रहा है उसके साथ, पढ़ दबा के कर रहा है कुछ, इकरा 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 का मतलब होता है इल्म। नबी ने क्या छोड़ के गया? इल्म। अरे नबी ने अबे तो पहली आयत है ना, वो जाहिल बात सुन, पहली आयत है ना, ये कुरान में किस नंबर पे आयत है ये? अबे जाहिल की औलाद, पहली आयत तो फोन खींचना, तो इल्म को कितना पीछे कर दिया, अबे इल्म को कितना पीछे कर दिया तुमने। अलहम्दु क्यों है, सूरह फातिहा क्यों है? पहली तो आयत वही थी कुरान की, तो वही होनी चाहिए थी, इल्म को इतना पीछे कर दिया तुम जाहिलों ने। तुम्हारा हाथ अब पर क्या बताए, अब इसे ये भी पता नहीं है, पहली आयत को इल्म थी ना, इल्म का मतलब पढ़ना लिखना था, तो इसलिए उसे सबसे बाद में धकेल दिया। 90 कुछ नंबर है समथिंग, मैं भूल रहा हूँ। जाहिल कौन तुम पर ताज्जुब है। अबे जाहिल इंसान, ये तो बता, पहली जो आयत उतरी थी वो पहले होनी चाहिए थी या सूरह फातिहा पहले होनी चाहिए थी? अबे तू तय करेगा, पहला दूसरा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जैसा चाहा, अरे जो पहले उतरी थी उसकी तरतीब अल्लाह ताला ने जिसको जैसा तरतीब की ऐसी की तैसी, मतलब बड़ा बेटा छोटा हो जाएगा और छोटा बड़ा हो जाएगा, ये कहाँ से तरतीब लाया भाई तू? सुअर ने तेरे को पैदा किया है, तैसे बात ही करना गुनाह है। तू तो जहालत किसी को मेरे माँ बाप है ना, मेरे माँ बाप कट्टर मुसलमान है, फिर तो अपने मुसलमानों को गालियां दे रहा है। मेरे माँ बाप कट्टर मुसलमान है, तुझसे भी ज्यादा वाले। चलो ठीक है यार, इससे मैं चलता हूँ, अभी रात भी ज्यादा हो गई है। जी इमरोज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नागेंद्र जी, इसको जरा निकालिए। अच्छा इसे हमारा गाना सुना दीजिए आप। ये शख्स कौन है यार? ये बिल्कुल, हाँ, ये शख्स बिल्कुल जाहिल है। कौन है? इसको ना कुरान का पता है ना हदीस का पता है, आके शोर मचा रहा है, सारी स्ट्रीम का बेड़ा गर्क कर रहा है। इसे हमारा गाना सुनवा दो। चैनल पे जाइए आप हमारे, अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो, गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चिट्ठा वीडियो में। हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर भेज सको तो स्क्रीन तो कर सकता हूँ। हाँ, कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना आपका? अरे भाई मैं कॉपीराइट भेजने वाला इंसान हूँ क्या? पहले भी तो चलवाया हूँ गाने अपने। कैसा इल्जाम लगाते हो यार? ये जो बोल रहा था वैसे, अगर हाँ इस्लाम कबूल कर लूं कभी तो कॉपीराइट भेज सकता हूँ। और वो तो होगा नहीं। जो लड़का बोल रहा था अभी मुस्लिम, सुनिए, और बहुत जल्दी मेरा यूसीसी पर गाना आ रहा है, 3-4 दिन के अंदर अंदर। इसको सबसे पहले ये पूछें, आपका लोगो नहीं दिख रहा क्या? जी मेरा लोगो दिख रहा है, मुझे आपका लोगो नहीं दिख रहा। करने का हुक्म दिया। इमरोज भाई का जो सॉन्ग है ना, प्राइवेट चैट में डाल दिया है, प्राइवेट चैट में इमरोज भाई का सॉन्ग। हाँ, उस पे इंडियन जी आप चला दीजिए मेरा। जी 1 मिनट। हाँ हेलो फिरोज बेटा, मेरे से किसी दिन तू पर्सनल में आजा, बात कर ले। हाँ गाना सुन थोड़े ठुमके लगा के, मोहम्मद साहब की नोटियों के ये फिर भौंकना चालू कर देगा। बाहर निकालिए इसको, नागेंद्र जी इसको बाहर निकालिए।
ये नहीं इस अभी तरीके के अभी जो रहने मोमेंट देते होते हैं ना, तो नहीं मैं ना ये चीज कर रहा बीच हूँ, बीच बैक स्टेज में में रहने ये देते। क्या, हाँ बैक स्टेज ही रखो ऐसे कुत्तों को, यहाँ आके और भौंकेंगे बिना मतलब में। जी इमरोज भाई इतना गाना प्यार से बात करते हैं हर एक से, इतना प्यार और इतने तहजीब से उससे बात करी, पर देखो भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। यार इमरोज भाई अच्छा मिला आवाज थोड़ी बढ़ा दे। कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है। सच कहता हूँ ये दीन मोहब्बत का नहीं है, इम्कान यहाँ कोई सदाकत का नहीं है, अल्लाह की कोई भी हकीकत नहीं इसमें, ये दीने मुहम्मद है मोहब्बत नहीं इसमें, बस खौफ जहन्नम का तो जन्नत का है लालच, महदूद है इस्लाम का बस इतना सा ही सच, तकलीफ यहाँ सारी बस औरत के लिए है, मर्दों की तो अय्याशी भी अजमत के लिए है। गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है। हर शहर गली गांव में बदनाम तुम ही हो, घबराए चमन जिससे वो गुलफाम तुम ही हो, करते हो तुम ही सर को जुदा तन से हमेशा, इस्लाम ने बख्शा है तुम्हें खूब ये पेशा, बदले में बहिश्त इसके मिलेगी ये लिखा है, मिट जाए सभी कौम तुम्हारी ये दुआ है, बस मर्द मुजाहिद रहे आबाद जहां में, हम काफिर और मुशरिक तो है बर्बाद जहां में। गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है। कुरान ने इंसान को इंसान से बांटा, काफिर दिले मोमिन के लिए सूरत काटा, हर वक्त खटकते हैं निगाहों में ये काफिर, जाए तो कहाँ जाए बताओ हमें आखिर, कहते हैं ये दुनिया भी वो दुनिया भी हमारी, हम कुछ भी नहीं मिट्टी की गुड़िया भी तुम्हारी, हम काफिर मुशरिक तो जहन्नुम में जलेंगे, अल्लाह के सीने में हमेशा ही खलेंगे।
غافل کبھی پڑھ تو صحیح اسلام کا چیٹھا، غافل کبھی پڑھ تو صحیح اسلام کا چیٹھا، چٹھے یہ حدیثوں میں بھی قرآن میں بھی ہے، چٹھے یہ حدیثوں میں بھی قرآن میں بھی ہے۔ یہ دیواریں نفرت کی جڑ سے ہلا دو، سینے سے مومن کے قرآن مٹا دو، کھیل بہت کافر مشرک کا کھیل چکے، ان حیوانوں کو اب انسان بنا دو، ان حیوانوں کو اب انسان بنا دو۔ بہت بہت شکریہ